A very warm welcome to all dear students. Today we will discuss Laplace transform. Transform means change, and by change we mean a function, say f of t in one variable, or a function f of x is converted to another function denoted by f bar s or capital F of s. These are two notations which denote Laplace transform. Or sometimes another variable which is used is lambda, f bar of lambda or capital F of lambda to denote Laplace transform of a function f of t or f of x. So, because it was studied upon by Laplace, he has found it out, it is on his name, and it is Laplace transform. So basically what it is, you are given one function, let us say f of t or f of x. This function is defined on real line. This is real line. 0 is in the middle. Here are negative real numbers. Here are positive real numbers. 0 up to infinity. So this is positive real line. On this real line, on this domain, the function is defined f of t. This may be the graph of the function. This may be the graph of the function. Or it could be like this. Or it could be like this. So this represents a function f of t or f of x. There is a function defined on 0 to infinity. This is that interval 0 to infinity, t or x, and we plot the graph f of t or f of x, and suppose the graph is like this. It could be any. If this is the graph t comma f of t, then Laplace transform of this function, Laplace transform of this function is another function denoted by f of s or f of lambda or f bar s or f bar lambda. This is the notation to denote the Laplace transform of the function f of t or f of x. And the definition of the transform is f of t, Laplace of f of t is equal to, this is the way to denote Laplace of some function f of t, or placing f of t in curly brackets is also used in some of the textbooks. Both are used. Laplace of f of t is defined as already said, it is a function of s or it is a function of lambda. And the definition of this transform is integration from 0 to infinity e raised to minus st into f of t dt. This is the definition of Laplace transform operated on a function f of t. This function is defined on positive real line 0 to infinity. So Laplace transform is nothing but evaluation of this integral. This is the given function e raised to minus st is kernel function. It is kernel function.
a function k of two variables s and t. So performing integration, treating s as a constant and then substituting the limits of t, because the integration is with respect to t, we will get a function of s only. A function of s. इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा, t को लिमिट्स मिल जाएगी और आने वाला फंक्शन s का फंक्शन होगा. That is the reason it is denoted by capital F of s or f bar of lambda. If I write it integration from 0 to infinity e raised to minus st, instead of s I write lambda e raised to minus lambda t into f of t dt, then it will be denoting a function of lambda, f bar of lambda. तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करता है. डेफिनेशन है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. लोअर लिमिट उसकी 0 रहेगी, अपर लिमिट उसकी इंफिनिटी रहेगी. e raised to minus st exponential function multiplied by the given function. Integration should be done of this, treating s as a constant and then substituting the limits of t. Lower limit is 0 and upper limit is infinity. This will result into a function, a new function, different function from this function. For small f, we use capital F of s or we use small f bar of s. If I write in terms of lambda, then also it is denoting Laplace f bar of lambda or capital F of lambda. So लैप्लास ट्रांसफॉर्म का कंसेप्ट समझ में आ गया, क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म. Shall I proceed further, dear students? यहां तक किसी को कुछ पूछना है? Any questions? Ma'am. Yes. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. Any questions, dear students? So, if there is a function f of t or f of x, it is a real valued function defined on 0 to infinity and its value is also real number. This is denoting set of all real numbers. फंक्शन जिस डोमेन पे डिफाइंड है वो 0 से इंफिनिटी है, लेकिन फंक्शन कोई भी वैल्यू ले सकता है, निगेटिव या पॉजिटिव. जैसे साइन फंक्शन, साइन का भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम देखने वाले हैं. जैसे कोसाइन फंक्शन, कोसाइन का भी ट्रांसफॉर्म हम देखने वाले हैं. एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन e raised to at, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन e raised to minus at, इसका भी ट्रांसफॉर्म हम देखने वाले हैं. f of t is equal to t itself, constant, not a constant, f of t is equals to t. t is t, then f of t is t square, so this is t square function. इनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम देखने वाले हैं. सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढ लेते हैं. सपोज दिस इज कांस्टेंट फंक्शन, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1, t वर्सेस f of t या x वर्सेस f of x. दिस इज द फंक्शन, से इट्स वैल्यू इज 2, कांस्टेंट.
इट्स वैल्यू इज 1। तो ये फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म से शुरू करते हैं। तो बेसिकली मुझे चाहिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। f of t is a constant function defined on 0 to infinity and it is taking only one single value 1। सभी वेरिएबल्स के लिए वो 1 ही ले रहा है वैल्यू। ये उसका ग्राफ है और इस फंक्शन का मुझे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढना है। सो हाउ विल वी फाइंड? सो वी नो definition of Laplace transform is for a given function f of t defined on positive real line, Laplace of f of t equals to integration from 0 to infinity e raised to minus s into t into f of t dt। तो f of t या f of x की वैल्यू 1 है, तो लैप्लास ऑफ 1 विल बी एफ ऑफ टी की जगह 1 रखेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू 1 डी टी। सो इट इज एज गुड एज इंटीग्रेटिंग ई रेस टू माइनस एस टी इंटू 1 इज ई रेस टू माइनस एस टी। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी। टेल मी डियर स्टूडेंट्स, s को कांस्टेंट अज्यूम करो, तो e रेस टू 80 का इंटीग्रेशन कितना होता है? एनीवन? e रेस टू 80 का इंटीग्रेशन इट इज e रेस टू 80 डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट a। e रेस टू 80 डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट a। तो लाइकवाइज ई रेस टू माइनस एस टी का विथ रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन कितना होगा? एनीवन? ई रेस टू माइनस एस टी, e raised to minus st upon minus s। यस, दैट्स परफेक्ट। ए की वैल्यू यहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हो तो ये माइनस एस है। एस को और उसके फंक्शंस को कांस्टेंट अज्यूम करके इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है। तो ई रेस टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, क्योंकि ई रेस टू 80 का इंटीग्रेशन ई रेस टू 80 डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ए होता है। यहाँ पर कोएफिशिएंट माइनस एस है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एस साइड में रखो, ई रेस टू माइनस एस टी। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी हुआ है तो लिमिट्स टी को देंगे, इसे लिमिट्स नहीं देंगे, ये कांस्टेंट है, इसको साइड में रख दिया। इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एस ई रेस टू माइनस एस टी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ये लिमिट्स देनी है हमें, ठीक है। ये लिमिट्स हमें टी को देनी है क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी हुआ है। अपर लिमिट इज इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट इज 0। टी के लिए ये वैल्यूज रख दिए हैं हमने। सो माइनस 1 अपॉन एस। इंफिनिटी इज अ वेरी बिग नंबर एंड दिस इज माइनस साइन, सो इट विल बी 1 अपॉन ई रेस टू, माइनस है इसलिए एक्सपोनेंशियल नीचे ले लिया तो पॉजिटिव हो जाएगा पावर में। s इंटू इंफिनिटी इज इंफिनिटी डियर स्टूडेंट्स, s इंटू इंफिनिटी, s इज सम फिक्स्ड नंबर कांस्टेंट, so it is e raised to infinity in the denominator, and likewise s into 0 0, e raised to minus 0 is 1 upon e raised to 0, and this is equal to minus 1 upon s as it is e raised to infinity. E is some irrational number 2 point something. E is a constant number and irrational number 2 point something, और उसका infinite power कितना रहेगा? Infinity. So always remember
e raised to infinity is infinity. It is also not defined. So it becomes 1 upon infinity. And e raised to 0, any number to the power 0 is 1. And so this is minus 1 upon s. 1 upon infinity is 0. Remember, dear students, 1 upon infinity is 0 and 1 upon 1 is 1. So, finally, it is minus 1 upon s. 0 minus 1 is minus 1. 0 minus 1 is minus 1. Minus 1 upon s into minus 1 is plus 1 upon s. This is the answer. तो हम क्या निकाल रहे थे? लैप्लास ऑफ 1. लैप्लास ऑफ 1, द कांस्टेंट फंक्शन 1 का लैप्लास डेफिनेशन से निकाला and it is 1 upon s. Note down this. Laplace with respect to t काढला का मॅडम? Yes, integration with respect to t केलेला आहे आपण. Yes. इसमें किसी को कुछ पूछना है? Any questions? आगे सोल्यूशन दाखवा. हाँ, आगे बढ़ना है. लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ 1, एफ ऑफ टी ला 1 ठेवलं, एक्सपोनेन्शियल इंटू 1 फक्त एक्सपोनेन्शियल. एक्सपोनेन्शियलचा इंटिग्रेशन ह्या फॉर्म्युलाने काढला आणि टी ला अप्पर लोअर लिमिट 0 इन्फिनिटी दिली आणि 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 असतं. 0 minus 1 minus 1 and into minus 1 upon s is 1 upon s. तो 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया 1 upon s. ऐसे 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इक्वल टू डैश. ऑप्शन रहेंगे 1 upon s, 1 upon s स्क्वायर, 1 upon s क्यूब या none of the above. None of the above. आंसर इज 1 upon s. अब 1 का निकाल लिया, 2 का निकाल सकते हैं क्या? अगर 1 का पता है तो 2 का निकाल सकते हैं क्या? वन कांस्टेंट फंक्शन है और 2 भी कांस्टेंट फंक्शन है. t वर्सेस एफ ऑफ टी. ये एफ ऑफ टी है, इसका मुझे लैप्लास निकालना है. एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2 का, तो मैं यहां से निकाल सकती हूँ. 1 के लैप्लास से 2 का लैप्लास निकाल सकती हूँ. मॅडम प्रीवियस क्वेश्चन दिखाव ना, स्क्रीनशॉट निकलती. मी नोट्स मध्ये दिलेला आहे, हे नोट्स दिलेले आहे. मी नोट्स दिए हैं मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म के, ऑलरेडी क्लासरूम में डाले हुए, गूगल क्लासरूम. ये इतना नीटली नहीं लिखा है मैंने. लैप्लास ऑफ 2, लैप्लास ऑफ 2 निकाल सकते हैं हम. कैसे? 2 को हम 1 + 1 लिख सकते हैं और लैप्लास की एक प्रॉपर्टी है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी. लीनियरिटी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होती है और इस प्रॉपर्टी को ऐसे समझते हैं. सपोज 2 फंक्शन है f1 और f2 और उनकी एडिशन का लैप्लास निकालना है. ऐसी सिचुएशन है ना यहाँ पे, इसको मैं f1 मान लू और इसे मैं f2 मान लू और दोनों के बीच में एडिशन हो सकती है या सब्ट्रैक्शन हो सकती है. दोनों भी केसेस लीनियरिटी से सॉल्व हो सकती है. लीनियरिटी प्रॉपर्टी इज states that Laplace of addition of n number of functions in general, n functions in general is equal to
एडिशन ऑफ लैप्लास ऑफ ईच फंक्शन। दो अलग बात है। क्या कहा मैंने? लैप्लास ऑफ एडिशन ऑफ n नंबर ऑफ फंक्शंस इन जनरल is equal to addition of their individual Laplace. म्हणजे हा एक फंक्शन, हा दुसरा फंक्शन, यांची बेरीज हा तिसरा फंक्शन आहे. पण त्या नवीन फंक्शनचं आपण ऑलरेडी एक्झिस्टिंग फंक्शन चा यूज करून लॅप्लास काढू शकतो. अँड हाऊ इट इज? लिनियरिटी प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड प्रॉपर्टी अँड इट स्टेट्स दो फंक्शंस या इन जनरल n नंबर ऑफ फंक्शंस के एडिशन या सब्ट्रैक्शन का लैप्लास उनके इंडिविजुअल लैप्लास का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है. बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत यूज होती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी. अगर मैं कहूँ f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, तीन फंक्शंस, इन जनरल n नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए ये होल्ड होता है. तो उनके इंडिविजुअल लैप्लास निकालना और उनको एडिशन कर लेना. अगर एडिशंस है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शंस है तो सब्ट्रैक्शंस, वो लैप्लास रहेगा इस फंक्शन का. इसे कहते हैं लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म. एनी क्वेश्चंस? एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट इज लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म. तो इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों कवर होते हैं, प्रोडक्ट और डिवीजन नहीं. रिमेंबर, प्रोडक्ट f1 into f2 is not distributive. Laplace transform is not distributive over product. Laplace transform is not distributive over division. Remember, it is only distributive over addition and subtraction, and that property of distributing the function over addition or subtraction is called linearity property. सब कुछ नोट्स में दिया है, आप सिर्फ अभी समझने की कोशिश कीजिए. लैप्लास ट्रांसफॉर्म की नोट्स ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पे है. यहां तक किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चंस? डबल एक बार बताओ मैडम, नहीं समझ में आया. देखो, अब तक मैंने आपको एक ही फंक्शन के बारे में बोला था कि एक फंक्शन है तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस डेफिनेशन से हम निकाल सकते हैं. ये डेफिनेशन है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की. तो हमने इस डेफिनेशन से कांस्टेंट फंक्शन 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढ लिया था, और वो कितना आया था? 1/s. लेकिन फिर हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 निकालना था. तो आपके पास दो रास्ते, आप f ऑफ t को 2 भी रखकर इंटीग्रेशन परफॉर्म करके लैप्लास ढूंढ सकते हो. लेकिन मैं लैप्लास ऑफ 2 लीनियरिटी प्रॉपर्टी से बताना चाहती हूँ आपको. अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या है? ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, दोनों के बीच में एडिशन है. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एडिशन ऑफ फंक्शंस इज एडिशन ऑफ देयर लैप्लास. ये है लीनियरिटी. लिनियरिटी प्रॉपर्टी इज दो फंक्शंस या n नंबर ऑफ फंक्शंस इन जनरल का एडिशन का लैप्लास होता है एडिशन उनके लैप्लासेस का. लिनियरिटी प्रॉपर्टी है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की. इसको अन्य शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? लैप्लास इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, वो f का निकाल लो, g का निकाल लो, और दोनों को ऐड कर दो और सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्ट कर दो. तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी से 2 का आराम से निकल जाएगा.
तो 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है 1/s, 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है 1/s, 1/s प्लस 1/s इज 2/s. तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 इज 2/s. लाइकवाइज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 क्या रहेगा? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 plus 1 plus 1 is लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1. ये लीनियरिटी से पॉसिबल हुआ, बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1. सो 1, 2 और 3 बार लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 is 3 times Laplace transform of 1. 3 times Laplace transform of 1 is 1/s. So it is 3/s. So in general, Laplace transform of a constant k, where k is a integer, just positive integer, is k/s. Point to be noted. If k is a positive integer, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ k इज k/s. आ गया समझ में? किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मेरा क्वेश्चन. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5 इज इक्वल टू डैश. आंसर्स ऑप्शंस दे रही हूं मैं. 1/s, 5/s, -5/s या s. क्या आंसर है? 5/s. 5/s. 5/s इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5. ये 5 कांस्टेंट फंक्शन है f ऑफ t, और f ऑफ t इज इक्वल टू 5 पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाया. लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज इंटीग्रेशन फ्रॉम e raised to minus st into f of t dt, ये लगाया और रिजल्टिंग s का फंक्शन आया और उसकी वैल्यू है 5/s. तो अभी हमने कांस्टेंट फंक्शन k के लिए लिख दिया. Laplace transform of a constant function k is k/s in general, right? वो मैन्युअली किया हमने, लेकिन अब यहां से आगे हम मैन्युअली नहीं करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. ये एक मैंने सैंपल के लिए लिया आपको कि किसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे ढूंढा जाता है. अब फॉर एग्जांपल फंक्शन आपको ऐसा दिया है. फंक्शन 1 है 0 से लेकर 1 तक. 1 के आगे 2 तक उसकी वैल्यू 2 है, और जो t 2 से बड़े हैं उनके लिए वैल्यू 0 है. हमें पता नहीं होता ना फंक्शन की वैल्यू कैसे भी दी जा सकती है. तो ये डोमेन पे 0 से 1 तक फंक्शन की वैल्यू 1 है, 1 से 2 तक 2 है, और 2 ऑनवर्ड्स 0 है. तो ऐसे फंक्शन की लैप्लास कैसे ढूंढेंगे? तो बेसिक डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा. इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए बेसिक डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा. लैप्लास ऑफ f of t is integration from 0 to infinity e raised to minus st into f of t dt. तो लैप्लास ऑफ द गिवन फंक्शन विल बी, इसको ब्रेक करेंगे 0 से 1, क्योंकि 0 से 1 पे एक डेफिनेशन है, 1 से 2 पे अलग डेफिनेशन है, और 2 के आगे डेफिनेशन अलग है. तो ये 3 हिस्से कर दिए हमने.
इंटीग्रल के, कर सकते हैं. We can split the integration and add. It will be same like the one which is without attained without splitting. 0 से 1 पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? 1 है. 1 से 2 पे डेफिनेशन क्या है फंक्शन की? 2 है. एंड 2 ऑनवर्ड्स इंफिनिटी तक 0 है. तो ये यहाँ पर फंक्शंस रख दिए 1, 2 और 0. तो ये दो इंटीग्रल्स सरवाइव करेंगे और ये वैनिश हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटू जीरो फंक्शन इज 0, इंटीग्रेशन ऑफ 0 फंक्शन इज 0. तो ये वैनिश हो गया. एंड 0 प्लस एनीथिंग इज द सेम थिंग. तो इतना ही काम बचा है. e रेस टू माइनस एस टी डी टी और 1 से 2 e रेस टू माइनस एस टी. ये 2 को सामने ले लेते हैं. 0 से 1 e रेस टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t, और अगेन माइनस e रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस s फ्रॉम 1 to 2. अपर लिमिट t को पहले 1 रखिए और s एज इट इज, माइनस लोअर लिमिट t को 0 रखिए. अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, प्लस 2. अपर लिमिट इज 2 माइनस लोअर लिमिट इज 1, 2, 1. So the answer is e raised to minus s upon minus s. E raised to 0 is 1. The exponential becomes 1 plus 1 upon s plus 2 e raised to minus 2s upon minus s minus e raised to minus s upon minus s. So this is e raised to minus s, माइनस ऊपर ले लिया, प्लस माइनस 2 एंड माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस. So it is this and this are same. This is minus and this is plus 2. 2 minus 1 is 1. So it is whole divided by s. So this is the Laplace transform of the given function f of t. What was the definition of f of t? 1 था, 2 था और 0 है. 1 है 0 से 1 पर, 2 है 1 से 2 पर एंड 2 ऑनवर्ड 0 है. ऐसे फंक्शन के लिए का लैप्लास इतना आता है, विच इज अ फंक्शन ऑफ s. एनी क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स? यहां तक सबको क्लियर है? तो डिपेंड्स, फंक्शन जैसा रहता है. अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे फंक्शंस का लैप्लास डिस्कस करने वाली हूँ जिनका आपको फॉर्मूला ही याद रखना है, इतना इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन ये फंक्शन की बाइफरकेटेड डेफिनेशन थी. किसी एक डोमेन पे एक डेफिनेशन, दूसरे डोमेन पे अलग डेफिनेशन, तो ये उसको बाय डेफिनेशन ही एग्जीक्यूट करना पड़ता है. एनी क्वेश्चंस? शैल आई प्रोसीड फर्दर? Yes, shall I proceed further? Yes, ma'am. Yes, thank you. अब आते हैं, yes, Laplace of
a function sin 80 in general, a is some constant, say sin 3t, sin 7t, ऐसे. तो पहले जनरल, Laplace of sin 80, how will you find? By definition. डेफिनेशन में f of t को sin 80 रख देंगे. ये बेसिक डेफिनेशन. ये फंक्शन sin 80 है. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity e raised to minus st into f of t dt. तो लाइकवाइज sin 80 का लैपलास ट्रांसफॉर्म कितना होगा? e raised to minus st into sin 80 dt. तो ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के बाद में आप अगर होमवर्क करोगे तो आपको पता चलेगा कि लैपलास ऑफ sin 80 इज a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. लैपलास ऑफ sin 80 इज a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. So this is a function of s. So ये लर्न करना है कि लैपलास ऑफ sin 80, ये फॉर्मूलेज लर्न करने हैं, इनको इंटीग्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. लैपलास ऑफ sin 80 इज a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया है तो टेल मी लैपलास ऑफ sin 70. आई गिव यू ऑप्शंस. So I am writing the options. Option What is the answer? B. option B, ma'am. Option is B. Option Right. Right. So remember Laplace of sin 80 ऐसे एग्जाम में पूछ सकते हैं is a upon s स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर. a आयडेंटिफाय करायचा, इथे लिहायचा, त्याचा स्क्वेअर काढून इथे ठेवायचा आणि हा फॉर्म्यूला लक्षात ठेवायचा. अब आते हैं लैपलास ऑफ cos 80 पर. लैपलास ऑफ cos 80 इज s upon s square plus a square. A is the coefficient of t. Laplace of cos 80 is s upon s square plus a square. तो अगर ये फॉर्मूला लर्न हो गया है आपको, cos के लिए s, sin के लिए a, cos के लिए s. साइन तो s से स्टार्ट होता है ना, लेकिन cos को s है, ऐसे हम याद रख सकते हैं. और साइन के लिए यहाँ पर a है. डिनोमिनेटर दोनों का सेम है. तो अगर ये फॉर्मूला आपको लर्न हो गया है तो मैं आपको फिर से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ रही हूँ. इज इक्वल टू डैश. टू अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 2, 2 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 4, s upon s square plus 2, s upon s square plus 4. What is the answer? Cos 2t चा लॅपलास ट्रान्सफॉर्म. D. D. D is correct. s अपॉन s स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर फॉर्मूला है. तो a आइडेंटिफाई किया, a का वैल्यू 2 है, स्क्वेयर किया 4 आ गया, s अपॉन s स्क्वेयर प्लस 4. तो ऐसे ही मैं अभी आपको और एग्जाम्पल पूछ रही हूँ. यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ पहले. लैपलास ऑफ साइन 80 इज a अपॉन s स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर, एंड लैपलास ऑफ cos 80 is
एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए आइडेंटिफाई करना, स्क्वायर लेना, ए स्क्वायर यहाँ पर रखना, ए यहाँ पर रखना, और अकॉर्डिंगली कॉस का भी करके आप निकाल सकते हैं। ये दो फॉर्मूलेज अभी तक मैंने आपको बताए हैं। और मेरा क्वेश्चन है 3t is equal to dash and Laplace of cos t is equal to dash. Laplace of sin 3t is equal to dash and Laplace of cos t is equal to dash. ऑप्शंस यहाँ पे लिख रही हूं मैं। This is the question. ध्यान से देखना ऑप्शन है। ध्यान से देखना और आंसर करना। सी सी एम सी सी या डी? सी मैम। सी सी ऑप्शन सी सी सही। साइन 3t is 3 upon s square plus 3 square and cos 80 से cos t का a का वैल्यू 1 है, तो s upon s square plus 1 सा स्क्वायर इज 1। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी कभी कभी लगता है यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है a होता है और यहाँ पर उसका स्क्वायर होता है। यस आगे बढ़ते हैं। लैप्लास ऑफ e रेज टू 80 एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी लैप्लास देखेंगे। कहा था ना मैंने, लैप्लास ऑफ e रेज टू 80 इज 1 अपॉन, तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो सही आएगा। और लैप्लास का वेटेज ज्यादा है। लैप्लास ऑफ e रेज टू 80 इज 1 अपॉन s माइनस a। रिमेंबर प्लस a के लिए माइनस है। Laplace of e raised to plus 80, a is a positive constant, is 1 upon s minus a, and Laplace of e raised to minus 80 निगेटिव नंबर रहेगा कोएफिशिएंट t का, तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन s प्लस a। इसको याद रख लीजिए। अब आपको याद ज्यादा रखना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, सब फॉर्मूलेज लर्न करने हैं और याद रखने के लिए रोजाना बादाम खाइए, सुबह मॉर्निंग में 3-4, रात में भिगा कर, मम्मी को कहेंगे। लर्निंग का ही पार्ट है इसमें ज्यादा। Laplace of e raised to 80 is 1 upon s minus a and Laplace of e raised to minus 80 is 1 upon s plus a। तो इस फॉर्मूला से what is the Laplace of e raised to 2t? Options are 1 upon s plus 2, 1 upon s minus 2, 2 upon s minus 2, 2 upon s plus 2। बी ऑप्शन। आंसर इज बी, 1 upon s minus a। सही है। अभी और एक क्वेश्चन। Laplace of e raised to minus 3t is equal to dash। Options are 3 upon s plus 3, 1 upon s plus 3, 1 upon s minus 3, 3 upon s minus 3। बी What is the answer? Option बी बी B। That is perfect। सही है। तो अभी हमने क्या सीखा? Laplace of e raised to 80 is 1 upon s minus a
एंड लैप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस ए टी। ऐसे ही पूछेंगे एग्जाम में, और क्या पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स में ऐसे ही पूछेंगे। हाँ, अब मेरा और एक क्वेश्चन, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। None of the above. What is the answer? What is the answer? B. Answer is B, ma'am. B. B. सही है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। प्लस के लिए माइनस, माइनस के लिए प्लस, सही है। तो अभी तक हमने देखा कि लैप्लास ऑफ के इज के अपॉन एस, तो के की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन एस। लैप्लास ऑफ साइन 80 इज ए अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, प्लस होता है रिमेम्बर। कॉस 80 का लैप्लास होता है एस अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। लैप्लास ऑफ ई रेस टू 80 इज 1 अपॉन एस माइनस ए, ई रेस टू माइनस 80 का लैप्लास इज 1 अपॉन एस प्लस ए। आई होप यहां तक ठीक है। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे जा रहे हैं। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? Laplace of t raised to n, where n is a positive integer, is Laplace of t raised to n या x raised to n का, इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल। n आइडेंटिफाई करना, n फैक्टोरियल अपॉन s रेस टू n प्लस 1। n में एक ऐड करना और वो पावर रहेगा s का डिनोमिनेटर में। दिस इज द फॉर्मूला। लैप्लास ऑफ t रेस टू n इज n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल फंक्शन आई होप ऑल ऑफ यू नो, अपॉन s रेस टू n प्लस 1। n factorial for a positive integer n is 1 into 2 into 3 into so on into n. n पर्यंत 1 पासून सुरू करून इंटीजर मल्टिप्लिकेशन करत जायचं n पर्यंत इज n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन याद रखना है, और यहाँ पर उस n आइडेंटिफाई करके उसका फैक्टोरियल आ जाएगा और s का 1 से बढ़ा देना पावर। जैसे t रेस टू 2 होगा तो s रेस टू 3 हो जाएगा, t रेस टू 3 है तो s रेस टू 4 हो जाएगा। ऐसे 4 फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? 1 into 2 into 3 into 4, so it is 2 into 3 is 6, 6 into 4 is 24। 5 फैक्टोरियल इज 1 into 2 into 3 into 4 into 5, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको 4 फैक्टोरियल निकालना और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना। सो 24 into 5, हाउ मच इज 5 फैक्टोरियल? 120। लाइक दिस। फैक्टोरियल फंक्शन समझ में आ गया? यस? Any questions? So if everything is okay, let me ask you a question depending upon this formula. ठीक है? How much is
लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर। अब मैं ऑप्शंस नहीं दूंगी, आप आंसर देंगे मुझे। ऑप्शन ऑफ टी स्क्वायर, यस 2 upon 2 upon yes Two yes upon s raised to s raised to 3, 2 upon s cube, परफेक्ट। देखो इस फॉर्मूला से भी 1 ऑफ t रेज टू 1, लैप्लास ऑफ t रेज टू 1 कितना आएगा? 1 upon s square मैम। 1 1 upon upon s square यस 1 upon s स्क्वायर। 1 का फैक्टोरियल 1, s का पावर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 अपॉन s स्क्वायर। लैप्लास ऑफ t क्यूब, थ्री अपॉन s raised to 4 upon 6 6 upon s raised to 4. 6 upon s raised to 4 6 अपॉन s रेज टू 4, करेक्ट। सो ऐसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, लैप्लास ऑफ t रेज टू 4 इज इक्वल टू डैश। अभी मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, आप निकाल के रखिए। Yes. What is the answer? b B. 24 upon s raised to 5. 4 factorial upon s raised to 4 plus 1 is 24 upon s raised to 5. Any questions, dear students? यहाँ तक सब समझ में आ गया? yes ma'am yes हाँ। ma'am अगर पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिव इंटीजर पावर है, तो हम t रेज टू n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू n प्लस 1 से कर पाते हैं। पॉजिटिव इंटीजर n होगा तो n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू n प्लस 1 से कर पाते हैं। लेकिन सपोज वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है और फ्रैक्शनल नंबर है सपोज, तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है, Laplace of t raised to n is equal to gamma n plus 1 upon s raised to n plus 1 whenever n is a fraction। gamma फंक्शन की डेफिनेशन होती है और फैक्टोरियल फंक्शन और gamma फंक्शन रिलेटेड है। gamma n plus 1 होता है n gamma n, ये भी नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूला ऑफ t रेज टू 1 अपॉन 2 is equal to dash। So we know that Laplace of t raised to n, where n is a fraction, is gamma n plus 1 upon s raised to n plus 1। This is gamma function। So कंपेयर कीजिए, n का वैल्यू कितना है 1 upon 2, value of n is 1 upon 2, so what will be its Laplace by this formula? 1 upon 2 plus 1, it is equal to, how to evaluate this? अब देखिए, gamma n plus 1 is equal to n gamma n, ये रिडक्शन फॉर्मूला है gamma का। n plus 1 का gamma is n times n का gamma, तो n plus 1 हाफ प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी है कंपैरिजन कीजिए, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 1 by 2 हाफ 1 by 2 यस 1 by 2, तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो 1 upon 2 gamma 1 upon 2, gamma
1/2 into 1/2 upon s raised to 3/2. 1/2 plus 1 is s raised to 3/2. इसको हमने 3/2 नहीं लिखा, ये फॉर्मूले से कंपेयर किया, n की वैल्यू 1/2 है, 1/2 gamma 1/2 is gamma 1 plus 1/2. 1/2 as it is. Point to be remembered, dear students. Gamma of 1/2 is square root of pi. Point to be noted. Gamma of 1/2 is square root of pi. So it is root pi. 1/2 as it is. Gamma of 1/2 का value square root of pi है upon s raised to 3/2. So this is equal to square root of pi upon 2s raised to 3/2. This is Laplace transform of t raised to 1/2. अभी इसी लाइंस पे हम लेंगे Laplace of t raised to 3/2. What will be the first step? ऐसा एग्जाम में पूछेंगे, Laplace of t raised to 3/2 is equal to dash. तो ऐसा पूछ सकते हैं, ऐसे ही कुछ, Laplace of t raised to 3/2 is equals to dash. तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो. फ्रैक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? गामा n प्लस 1 अपॉन s रेस टू n प्लस 1. ठीक है, तो इस फॉर्मूले से लैप्लास ऑफ t रेस टू 3/2, n की वैल्यू कितनी है? 3/2. 3/2 प्लस 1 का गामा अपॉन s रेस टू 3/2 प्लस 1. ऐसे लिख दिया हमने. अभी s के पावर को ऐड कर दो. 1 प्लस 3/2 इज 5/2. 1 प्लस 3/2 इज 5/2. ये आता है ना सभी को? 1 प्लस 3/2. 2 into 1 is 2. 2 plus 3 divided by 2. Cross multiplication. 3 plus 2 is 5. 5/2. So this is how we have obtained this as 5/2. gamma of 3/2 plus 1 के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे. gamma n plus 1 is n gamma n. What is the value of n? कंपेयर करो. 1 3/2. 1. Yes, n is 3/2. 3/2 gamma 3/2. 3/2 into gamma 3/2. It is equal to, ये 3/2 और s रेस टू 5/2 को साइड में रख दो. गामा 3/2. इसको कैसे निकालेंगे? एनीवन, कोई गेस कर सकते हैं इसको कैसे निकालेंगे? 1/2 into 3. 1/2 into 3. थोड़ा और सोचिए. 1/2 into 3 से थोड़ा और, क्योंकि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होता ना, ये नहीं होता. 1/2 में होने वाला है और 1/2 का हमें पता है, ये कंफर्म है. रूट पाय इंटू गॅमा 3 येते. नाही, असं नसतं, हे म्हणते मी. और कोई गेस? गर्ल्स में से कोई? 3/2 को आप एडिशन में लिख सकते हैं क्या? और फिर एडिशन का फॉर्मूला 1/2 plus 1. यस, 1/2 plus 1. अब ये लगा दो, कंपेयर करो फिर से. n कितना आ रहा है? 1/2. यस, तो फॉर्मूला क्या देगा? 1/2 गामा 1/2.
तर हे 3 2 गुणिले 2 4 s रेस टू 5/2 इंटू गॅमा 1/2. गॅमा 1/2 ची किंमत लक्षात ठेवायला सांगितली होती, स्क्वेअर रूट ऑफ पाय असते. सो द फायनल आन्सर इज 3 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ पाय अपॉन 4 इंटू s रेस टू 5/2. तो अभी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स लिए. t रेस टू 1/2 का निकाला और t रेस टू 3/2 का निकाला. ठीक है, ये कुछ आया था, जो भी होगा ऊपर. अब हम निकालते हैं 5/2 का. अपॉन 2 वाले ही पूछ सकते हैं ज्यादा करके, तो मतलब ऐसे, क्योंकि 1/2 का रूट पाई होता है, इतना सफिशिएंट है आपके लिए. हाँ, व्हाट अबाउट दिस? अप्लाई दिस फॉर्मूला. n इज अ फ्रैक्शनल नंबर. गैमा n+1 अपॉन s रेस टू n+1, और ये फॉर्मूला भी यूज करना है. गैमा ऑफ n+1 इज n गैमा n. कितना आएगा यहाँ पर? सबसे पहले ये फॉर्मूले से कितना आ जाएगा? स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. n ची किंमत किती आहे? 5/2. तो ये फॉर्मूले से कितना आएगा? ये फॉर्मूला से how much it will be? Yes, how much it will be? 7/2. 5/2 plus 1. Gamma of 5/2 plus 1 अपॉन s रेस टू 5/2 plus 1. तर सर्वात पहिले काय करायचं? s रेस टू 7/2 होईल हे, आणि हे 5/2 plus 1 ला हा फॉर्म्युला लावा. किती होईल? n ची किंमत किती आहे? याला याच्याशी कम्पेअर करा. 5/2. 5/2. n गॅमा n. गॅमा n plus 1. Gamma n plus 1 is n gamma n divided by s raised to 7/2 as it is. अतः 5/2 into s raised to 7/2. Gamma 5/2. Gamma 5/2 को कैसे लिखेंगे? 1/2 plus 2. 1/2 plus 2. 3/2 plus 1. Yes. 3/2 plus 1 divided by s raised to 7/2. अब 5/2 s raised to 7/2. Gamma 3/2 plus 1. इसे गैमा n+1 इज इक्वल टू n गैमा n फिर से लगाओ. अब n की वैल्यू कितनी है अभी? 3/2. Yes. 3/2. Yes. 3/2 गैमा 3/2. 5 into 3 is 15. 2 into 2 is 4. s raised to 7/2. गैमा 3/2. गैमा 3/2 को 1/2 में कैसे लिखेंगे? 1/2 plus 1. 1/2 plus. यस. हाँ, अभी फिर से ये फॉर्मूला लगाओ. n ची किंमत किती आहे? 1/2. यस. ये s नीचे है, यहां पर है, वो लिखने में ऊपर मैंने लिख दिया. फॉर्मूला लगाया 1/2 गैमा 1/2.
गॅमा 1/2 + 1 साठी. तो इट इज 15. 4 into 2 is 8. Gamma 1/2 is square root of pi. So final answer is 15 square root of pi upon 8 s raised to 7/2. So today we discussed what is Laplace transform for a given function. We discussed Laplace transform of 1 by actually calculating it. We discussed example based on the formula Laplace of sin at is a upon s square plus a. Laplace of cos at is s upon s square plus a. Laplace of t raised to n, where n is a positive integer, is n factorial upon s raised to n plus 1, whenever n is positive integer. And wherever n is a fraction, 1/2, 3/2, 5/2, that time it will be gamma n plus 1 upon s raised to n plus 1. इतना आज हमने सीखा. Any questions in this discussion? कुछ पूछना है? समझ में आ गया?